Chapter number 7, Permutation and Combinations. Very important topics. In these topics, we have few terms that have to be noted. Let me take an example. That is, let's say student have three pens P1, P2 and P3. Pens I have represented in थ्री पेंट्स हैं, ये मैंने ट्री डायग्राम से समझाया. एंड टू शर्ट्स हैं. स्टूडेंट्स हैव थ्री पेंट्स एंड टू शर्ट्स. हाउ मैनी डिफरेंट पेयर ऑफ पेंट एंड शर्ट कैन बी ड्रेस अप. डिफरेंट पेयर मीन्स स्टूडेंट्स को तैयार होने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, पेंट भी चाहिए और शर्ट भी चाहिए. इट मीन पहले तो आपको यही कंडीशन माइंड में सेटअप करनी है. द रिक्वायरमेंट इज बोथ. आइदर और नहीं है, एंड है. मीन पेंट भी चाहिए और शर्ट भी. इट मीन स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट द पेंट इन थ्री वे, P1, P2 एंड P3. एंड विद ईच पेंट द शर्ट कैन बी सिलेक्शन इन टू वे. वन इज S1, अनदर इज S2. नाउ दिस इज a dress P1 S1 is one dress, P1 S2 is the second dress, P2 S1 is your third dress, and P2 S2 is your fourth. This is fifth dress and this is sixth. This is the tree diagram. From here I have discussed the permutation and combinations. Clear? It means if students have three pants and two shirts, the number of dresses will be 6. Similarly, students have two water bottles, two bags कह सकते हैं B1 and B2, and three tiffin T1, T2 and 3, and two water bottle. In how many arrangements it can be done, he want to carry the things. ठीक है, मतलब एक students have two school bag, three tiffin box and two water bottle. In how many way he can carry all these three items. बैग वन के साथ तीन आपने टिफिन लगा दिए, दोनों वाटर बॉटल्स लगा दिए, तो ये B1 T1 W1, B1 T1 W2 is one arrangement, B1 T2 W1 is another, this is another. So this is the tree diagram. Total you can see there are 12 items, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो इन ऑल द केसेस इट इज़ नॉट ईजी टू पॉसिबल कि हम सब के ट्री डायग्राम बनाएंगे और काम करेंगे. इसके लिए बेटर यही है कि वी हैव डेवलप वन फार्मूला. द नेम इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. In this case you can say the pant can be selected in three way, shirt can be selected in two way, therefore the total way is 3 into 2, that is 6. In this case bottle can be selected in two way, tiffin can be selected in three way, and water bottle can be selected in two way. 2 into 3 into 2, that is 12. So this is the same definition. If an event can occur in m different way, the pant is one event, occur in three different way. This is I have written m different way. मतलब डिफरेंट वर्ड जरूरी है. जैसे P1 P2 P3 ये पेंटें डिफरेंट थी तो यहाँ डिफरेंट जरूरी हैं. फॉलोइंग इसके साथ मतलब फॉलोइंग आगे, विच अनदर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वे. जैसे पेंट 3 वे से थी, शर्ट 2 वे से थी. देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज गिवन बाय m by n वे. तो दिस इज द फार्मूला. पेंट्स P1 P2 P3 कैन बी टेकन इन 3 वे. आप कह सकते हैं कि पेंट कैन बी सिलेक्टेड इज 2 वे, शर्ट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वे, पेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वे. therefore total number of way that the dress can be selected is 3 into 2, 6 वे. यहाँ पे आप कह सकते हैं बॉक्स कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 2 वे, टिफिन T1 T2 T3 कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 3 वे, water bottle can be selected is equal to 2 way. Therefore students can carry the item is
3 into 2 into 3, that is your 6 ways. That is total 12 cases आपके आ जाएंगे. तो from here let us discuss your exercise 3.7.1. Very simple questions, totally based on fundamental principle of countings. I am taking your question number 1. How many 3-digit number can be formed from the digits? सबसे पहले आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर में गिवन डिजिट्स नोट कर लेने. आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1, पेज नंबर 138. जो गिवन डिजिट्स रहेंगे वो आपके पास 1, 2, 3, 4 and 5. Constructions of 3-digit number. ठीक है. केस 1, repetitions. How the digit is allowed. मीन्स आपने यहाँ पे इस टाइप से एक बॉक्स बना लेना. जितने 3 डिजिट्स नंबर आप यहाँ पे 3 ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे. जो इनकी नेचर्स आप यही लिखेंगे. इसको आप वंस प्लेस कहते थे, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है. तो आप ये लिख सकते हैं कि वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 5 वेज. वेज का मेरा मतलब होता है कि 5 तरीकों से, मतलब पहला तरीका 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, इसलिए 5 वेज लिखा है. सिंस रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मीन जो नंबर 1 आपने यहाँ लिया वो यहाँ पे भी ले सकते हैं दोबारा. ठीक है. इसलिए टेंस प्लेस भी 5 वे से ही आएगा. और सिमिलरली 100th प्लेस भी 5 वे से ही आएगा. देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज इज इक्वल टू 125 वेज. This is a final answer. Case 2, when repetitions of digits not allowed. बॉक्स तो सेम ही रहेगा. वंस प्लेस can be filled is equal to 5 वे. आप 100 से इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से करें या इधर से करें. टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड 4 वे, क्योंकि जो नंबर आपने यहाँ ले लिया उसको यहाँ नहीं लेंगे. और 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इज 3 वे. तो बाय fundamental principle of counting, total ways 5 into 4 into 3, that is equal to 60. तो ये क्वेश्चन आपके पास
सेकंड क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हैं जो स्टेटमेंट में लिखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर। अब देखो यहाँ पे कंडीशन ऑड नंबर की आ गई है, तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने कंडीशन को फिलअप करना होता है। अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि एक ऑड नंबर कौन से होते हैं। मान लेते हैं हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 2 का। आप कहेंगे ऑड नंबर आर दोज नंबर whose ones place is odd। अगर मैं केस 1 डिस्कस करूं, मैं ओरली डिस्कस करूंगा, लिखने का तरीका मैंने समझा दिया। एक क्वेश्चन के थ्रू अब सारे ऐसे ही लिखेंगे। शॉर्टकट में मैं इसको आपको हमेशा ऐसे समझाऊंगा, ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, ये मेरा वंस प्लेस है, ये मेरा टेंस प्लेस है और ये मेरा 100th प्लेस है। केस 1 का मतलब है रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे ऑड प्लेसेस कितने हैं, 1 3 5। इसका मतलब इसको हम 3 वेज लिखेंगे। अब टेक्स्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इज 3 वे। ब्रैकेट में 3 वे के साथ आपको जरूर लिख देना चाहिए कि आपने 1 3 और 5 में से कोई एक नंबर लिए। अब रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड है। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 5 वे आएगा। मीन्स कौन सा नंबर नहीं आएगा, जो नंबर आपने यहाँ ले लिए। यहाँ पे 4 वेज आएंगे, कौन से नंबर नहीं आएंगे, जो यहाँ और यहाँ ले लिए। देयरफॉर टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 5 × 4 × 3 दैट इज 60। ये 60 ऑड नंबर आएंगे। लेकिन इसी केस में अगर मैं सेकंड केस डिस्कस करूं, फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है। तो पहली लाइन में तो कोई चेंज नहीं होगा, वंस प्लेस तो 3 वे ही आएगा क्योंकि ऑड नंबर चाहिए। लेकिन 10 प्लेस 5 वे आ जाएगा क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। 5 नहीं बल्कि 6 आएगा क्योंकि टोटल नंबर तो 6 है, और ये भी 6 वे आएगा। तो यहाँ से टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 6 × 6 × 3 दैट इज 36 × 3 is 108 ways। तो ये सब ऑड नंबर है, मतलब कंडीशन जो है वो सबसे पहले फिलअप होंगे, ये बात ध्यान में रखना। ऐसे ही मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है, लिखने का तरीका इसमें भी यही रहेगा। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब इसने जब कहा कि मेंशन नहीं किया कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, तो हम नॉर्मली ऐसे केसेस में अलाउड करते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे नंबर अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर्स, तो वो 3 डिजिट्स नहीं रहेगा। मतलब इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये 100 प्लेस से फिलअप होगा। आप कहेंगे 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू, 0 को छोड़ के काउंट करें, 1 2 3 4 5, और 10 प्लेस इज इक्वल टू 6 वे, और 1's प्लेस इज इक्वल टू 6 वे। तो टोटल वेज 36 × 5 180। दोबारा समझ लीजिए, मैंने कहा था कि जब मेंशन ना हो तो हम ज़्यादातर रेपिटेशन अलाउड का केस लेंगे। जो कंडीशन हमें लगता है कि सपोज करो नंबर यहाँ 0 से मैं स्टार्ट कर लूँ, तो इसका मतलब 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। मतलब आपके पास ऐसा, इस नंबर को आप क्या कहोगे, दिस इज़ नॉट एक्चुअली 3 डिजिट नंबर। हाँ, ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये नहीं है। इसलिए हमने कंडीशन लगाई कि नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 100 प्लेस से पहले सम स्टार्ट किया।
यहाँ पे और प्लेसेस थी, यहाँ था। इस क्वेश्चन में जिधर मर्जी से स्टार्ट कर लेते बिकॉज कोई कंडीशंस नहीं थी, इसलिए डिजिट के क्वेश्चनों पे मैंने आपको इस टाइप से ये बातें बताने की कोशिश करी है। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी में रीडिंग कर देता हूँ, अब मैं ओरली समझाऊंगा आपको। तो लेट मी टेक द सेकंड क्वेश्चन। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर हैं कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स? डिजिट कैन बी रिपीटेड। हिंट समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखना आपने प्रॉपर उसी तरीके से है। पेज नंबर 138 है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 डिजिट बना लिए। गिवन डिजिट्स आपके पास 1 to 6 हैं। इवन नंबर आपके पास ये 3 होंगे, तो पहले कंडीशन फिल्ड अप करेंगे। 3 वे आ गया। रेपिटेशन अलाउड है 6 into 6, तो टोटल वे आप यहाँ से लिखें। समझने के लिए तरीका ठीक है, लिखने के लिए आपको अपना तरीका बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 4 letter code can be formed using the 10 letter of the English alphabet if no letter is being repeated? 4 letter code बनाना है, मतलब ये फर्स्ट लेटर, ये सेकंड, ये थर्ड, 4 बॉक्स बन गए। इसको फर्स्ट कह लो, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट लेटर कैन बी टेकन इज इक्वल टू 10 वेज कह दूं, क्योंकि 10 में से लेने हैं, 26 से नहीं लेने। नो लेटर बीइंग रिपीटेड है, ये बातें दिमाग में रखना। इसका मतलब सेकंड लेटर कैन बी टेकन 9 वे आ गया। इट मीन थर्ड लेटर्स कैन बी टेकन 8 वे आ गया, एंड फोर्थ लेटर कैन बी टेकन इज 7 वे। Therefore, total ways will be equal to 10 into 9 into 8 into 7. Question number 4. How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9? मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। टेलीफोन नंबर वैसे जब भी क्वेश्चन आए तो वो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। आपने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर लेना है। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, ये आपने 5 डिजिट्स नंबर ले लिए जी, लेकिन 2 डिजिट तो फिक्स हैं, एक 6 लेना और एक 7। तो इसका मतलब बाकी के डिजिट 0 to 9 में number of digits between 0 to 9 will be equal to 10। 10 में से 2 यूज हो गए 8, तो यहाँ 7 वेज आएगा। ये 6 है तो 1 वे आएगा, ध्यान में रख लेना, बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। 7 है तो 1 वे आएगा क्योंकि ये फिक्स है। ये 7 वेज आएगा, ये 6 वेज आएगा और ये 5 वे आएगा। तो टोटल वेज 1 into 1 into 7 into 6 into 5, that is 210। Question number 5. A coin is tossed 3 times and outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? देखो आप ये लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स इन फर्स्ट कॉइन। कितनी? 2 होती हैं, या तो एक हेड होगा या एक टेल होगा।
number of outcomes in second coin, ये भी 2 होंगी. नंबर ऑफ आउटकम्स इन थर्ड coin, ये भी 2 होंगे. तो टोटल वेज will be 2 into 2 into 2, that is 8 ways. ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया. आज का लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स खुद करना. ये फंडामेंटल पे है. 2 मैंने एक्स्ट्रा सम दिए थे. एक जीरो कॉन्सेप्ट वाला आपको दिया था. गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, how many different signal can be generated? Each signal require the use of 2 flags, one below the other. मतलब एक फ्लैग अगर जो आपने नीचे रखा तो एक फ्लैग ऐसे ऊपर, ये फ्लैग F1 और ये फ्लैग F2 है. ठीक है, एक सिग्नल जाएगा, मतलब वन सिंगल सिग्नल मीन्स 2 फ्लैग्स. ठीक है. अब देखिए, फर्स्ट फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड, टेकन लिख लो, सिलेक्टेड में भी प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 5 है. डिफरेंट फ्लैग्स हैं तो सेकंड फ्लैग कैन बी टेकन इज इक्वल टू 4 वे. Therefore, by PMI, by fundamental principle of counting, total ways will be equal to 5 into 4, that is 20 ways. So this is your exercise 7.1. This is the chapter permutation and combinations that I have started. तो आज आप इतना ही करें.